So whatever you speak, if you use your gesture, postures, paralinguistic signs, and communication through your posture, gestures, and non-verbal, it and tonality. आप मुझसे कोई बंदा पूछे ना, मैं किसी से पूछूं आप कैसे हैं, तो वो मुझे देखे, वो जवाब दे सर आई एम वेरी हैप्पी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम वेरी हैप्पी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा दूसरा वे है ये कि सर आई एम वेरी हैप्पी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो दोनों मेरे वर्ड्स, मेरे वर्बल साउंड और मेरी नॉन वर्बल, ये दोनों जब मैच करेगी तो मजा आएगा। 93% के पीछे हम नहीं जाते, हम क्या करते हैं, किसके पीछे जा रहे होते? 7% के पीछे। वर्क ऑन योर 93% एरिया, टोनैलिटी, postures, gestures, non-verbal area, paralinguistic, how you convey and create your coordination, cognitive coordinations. Cognitive coordination कैसे आएगा? कि जब आपकी tonality और words match कर जाएंगे. Okay, we'll see all these things. Today we are going to discuss about Thomas Carlyle. In today's lesson, I would like to teach you about Victorian criticism. As I already told you, in Victorian era, we had many critics, and we are going to discuss all one by one. Before that, we discussed about Matthew Arnold as a critic, Matthew Arnold as a poet, and Matthew Arnold as a critic. Before that, Matthew Arnold, he was a poet, and he wrote poetry. After that, he started working on culture and anarchy. So what kind of culture and anarchy he was working? He was working because people like British people, they were occupying various land. They were occupying India, they were occupying Africa and America and several other countries. So they occupied. What happened? No, Matthew Arnold criticized their way of occupying their land. He said that culture is in fact a thing that is in continuation and that is in a progressive form. It is not something in a static, you just discuss something and after that it stops. It is continuously growing. He also said that anarchy means when one individual or one country, it controls everything and manipulate, controls and dictates. So he discussed culture and anarchy. He even discussed about Philistines. He discussed about Hebraism. He discussed about Hellenism. I discussed yesterday that what is Hellenism, what is Hebraism. We discussed all. And today we are going to discuss one of his poem. Matthew Arnold poem, and it is in the form of dramatic monologue. What is dramatic monologue? When one character he gives a talk of his personal talk. He considered as if somebody is in front of him and he started talking. This monologue is known as dramatic monologue. When character gives his personal speech, he considers someone is in front of him and he keeps on talking. This conversation and talks is known as dramatic monologue. Dover Beach by Matthew Arnold. Dover Beach is a place where first time Matthew Arnold, he went with his wife and they both went over there and they enjoyed their honeymoon. In this dramatic monologue, Dover Beach, he gives reference of the land, of Victorian society, of industrialist society, how industrialists they are occupying and we are losing our faith. So he discussed about losing faith. He discussed about the barren land. He discussed that we can't give each other anything. But what can we do? We can give each other love. हम एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते, हम एक दूसरे को प्यार ही दे सकते हैं, और हम दे ही क्या सकते हैं अपनी वाइफ से, वो कहता है। जो उसके सामने पर्सन होता है वो उसकी डेफिनेटली वाइफ होती है या उसकी कोई बिलवड होगी, तो उस बिलवड को कहता है कि मैं आपको दे ही क्या सकता हूं और आप मुझे क्या दे सकती हो। हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत दे सकते हैं। ये लैंड जो हमारे इर्द गिर्द जो हमें लोग नजर आ रहे हैं, ये लोग तो बहुत ज्यादा बैरन हो चुके हैं, ये जमीन बैरन हो चुकी है। यहाँ पे लव, यहाँ पे फेथ, यहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे गुडनेस बिल्कुल मिट चुकी है।
लोगों का गॉड के ऊपर फेथ नहीं रहा, लोगों का गुडनेस के ऊपर फेथ नहीं लगा रहा, लोगों का वर्च्यू के ऊपर फेथ नहीं रहा। अगर हम एक दूसरे को दे सकते हैं तो वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो ट्रस्ट है, वो एक दूसरे के लिए फेथफुलनेस है। यही तो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। और हम दे क्या सकते हैं? तो उसे कहता है कि लेट्स हैव अ लव एंड गिव गुडनेस टू ईच अदर एंड एक्सेप्ट दैट वी हैव नथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसके अलावा हम इस दुनिया में रहा ही क्या है? जो नजर तुम्हें दुनिया नजर आ रही है, ये तो धोखा है, ये तो डिसेप्शन है, ये तो बिल्कुल यकीन से खाली लोग हैं। और ये दुनिया बैरन आपको नजर आ रही है, इसके अंदर है क्या प्यार मोहब्बत के सिवा? इसके अलावा एक उसकी पोएम है जिप्सी स्कॉलर, ये मैं आपको फिर कभी टीच करूंगा। तो हम सबसे पहले थॉमस कार्लाइल की लाइफ को डिस्कस करते हैं। थॉमस कार्लाइल 1795 के अंदर पैदा हुए हैं। थॉमस कार्लाइल एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। थॉमस कार्लाइल के जो फादर थे वो एक फार्मर थे। लिख लें पॉइंट, कुछ चीजें मैं आपको लिखवाता हूं। थॉमस कार्लाइल एक विक्टोरियन क्रिटिक है और बड़ा प्रोमिनेंट क्रिटिक है। फादर इसके क्या थे? फार्मर थे। थॉमस कार्लाइल ने एक बुक लिखी है फ्रेंच रेवोल्यूशन आ हिस्ट्री के नाम से भी जानी जाती है। उसी से इंस्पायर होके चार्ल्स डिकन ने उसके ऊपर लिखा था अ टेल ऑफ द टू सिटी। आपने पढ़ा होगा, दो सिटीज की कहानी, अ टेल ऑफ द टू सिटी। अगर आप दोनों में से किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर आपको दिखाया गया है कि इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस के हालात क्या थे, कैसे फ्रेंच पीपल के ऊपर अगर अजाब आ रहा था तो उसका इंपैक्ट जो है वो दूसरे कंट्री के ऊपर पड़ता है। जो भी उसके साथ बॉर्डर अटैच होता है उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। आज पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली अफगानिस्तान के ऊपर होता है। अफगानिस्तान के अंदर कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट हम पाकिस्तान पे ऊपर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे बहुत हद तक रिलीजियस और कल्चरल जो हार्मोनी है वो हमें मजबूर करती है, और हमारे रिलेशनशिप उनके साथ है, उनके हमारे साथ हैं। इसी तरह इंग्लैंड और फ्रांस के जो बॉर्डर्स हैं वो मिलते हैं। वहां पे डावर बीच के अंदर भी वो मैथ्यू आर्नल्ड बताता है कि वहां से मुझे फ्रांस का किनारा नजर आ रहा है। अभी मैं आपके सामने वो उसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट आपके सामने करूंगा तो डावर बीच की, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर बताएगा कि मुझे नजर आ रहा है फ्रांस का जो किनारा है वो मुझे नजर आ रहा है। इसका फादर जो था वो एक क्या था? एक फार्मर था और पुअर मैन था, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था। सारी जिंदगी थॉमस कार्लाइल ने किताबें लिख के और दूसरे लोग इससे राइटिंग करवाते थे और इस तरह इसने इसने पैसा कमाया। इसको कहते हैं ग्रब स्ट्रीट राइटर। लिख लें, ये सारी जिंदगी एक ग्रब स्ट्रीट राइटर रहा है जिसको हायर किया जाता है कि ये पैसे ले लो। आजकल तो वो फ्रीलांसर आ गया ना कि $10 ले लो, मुझे लिख दो। तो उस वक्त क्या होता था कि लोग हायर करते ऐसे किसी इंटेलेक्चुअल को, उसे कहते कि यार ये इसकी कॉपी लिख दो, इसकी समरी लिख दो, ये मैं आपको नोट्स देता हूं, इसको अपने लफ्जों में लिख दो। तो इस तरह वो लिख लिख के लोगों को लिख के पैसे कमा रहा था। फादर जो था वो फार्मर था और इसकी मदर जो थी वो भी एक पुअर लेडी थी। अब ना तो फादर की साइड से इसे पैसा मिला है और ना मदर की। जो इसके फादर थे, मतलब जो इसकी मदर थी, इसकी मदर जो थी इसके उसके फादर भी एक बैंकरप्ट थे, मतलब उसको भी बैंकरप्ट हो चुके थे और वो भी बुरी तरह उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी थी। ना तो फादर की साइड से पैसा आया ना मदर की साइड से, और बिल्कुल यानी पॉवर्टी में लाइफ गुजारी और एक स्ट्रीट राइटर के तौर पर जगह जगह फिरते रहे ताकि लोगों को के उसे कोई लिवलीहुड उसे मिल जाए। और कहते हैं कि ये एक एज आती है इसके ऊपर जिसमें ये बहुत ज्यादा 1818 में 1818 में ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। जब जो भी जिसने भी फाइनेंशियल कंडीशन को बियर किया, बर्दाश्त किया, वो जानता होगा कि जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती तो आपको एक डिप्रेशन आती है। और डिप्रेशन, जब भी आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जाते हैं तो यहाँ ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो पूरे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। आपको कोई स्ट्रोक भी आ सकता है, आप ब्रेन हेमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई भी डिजीज जो है जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो हो सकती है। 1818 में थॉमस कार्लाइल डिप्रेशन में चले गए और उसकी वजह से काफी साल ये कुछ ना लिख सके। डॉक्टर को इनको पता चला कि वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में चले गए हैं। तो सम टाइम इंसान यानी बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर में चला जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया में चला जाता है। इस तरह की बहुत सारी डिजीज है कि इंसान को हेलुसिनेशन शुरू हो जाती है, मतलब जो सामने रियलिटी नजर आ रही होती है उसे नजर नहीं आती।
वो जो सामने बंदा उसे नजर आ रहा होता है वो कहता है कि ये मेरा चोर है। वो एक कंडीशन है स्किज़ोफ्रेनिया वाली के इंसान को रियलिटी नजर नहीं आती। उसका कोई खैर ख्वाह भी होगा तो वो उसे समझेगा कि शायद ये मेरा दुश्मन है। क्यों है? ये इंसान के अंदर कुछ जहनी बीमारियां होती हैं और ये एक दिन में नहीं आती। आपके साथ मिसाल के तौर पर मेरे सामने कोई बंदा आया तो अब हमारी कुछ 10 साल पहले एक दफा घर में रॉबरी हुई, तो मेरे सामने जो आए मैं उसे कहूँ इसने मेरी चोरी करवाई, ये मुझे वैसा लगता है जैसे वो डाकू हमारे घर आए थे। तो बिलीव मी, मैं कई साल तक 2-3 साल तक मैं खुद डिप्रेशन में चला गया और मुझे हर बंदा ही चोर लगे। तो एक दफा मेरा दोस्त मेरे पास आया, उसने मुझे गाइड किया, उसने कहा भाई मेरी बात सुने, देखिए अगर आप हर किसी को ये कहेंगे कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी मुझे वैसा लगता है, ये भी मुझे, तो फिर तो आपके साथ कोई बैठेगा नहीं, आपसे तो बात भी नहीं करेगा, लोग आपको डिसलाइक करेंगे, आपके पास तो कोई बैठेगा नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा अपना मेथड चेंज किया कि भाई हर किसी को चोर ही कहता रहूंगा तो मेरे साथ तो कोई नहीं जुड़ेगा, पीपल विल हेट मी। और ऐसे ही हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा अपनी पैराडाइम को चेंज किया। सो सम टाइम वी नीड टू शिफ्ट आवर पैराडाइम। सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है कि हम हमने जो सेट ऑफ थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करें। तो इस तरह ये डिप्रेशन में चले जाते हैं 1818 में थॉमस कार्लाइल, और काफी सालों तक ये डिस्टर्ब रहते हैं और कुछ लिख भी नहीं पाते। इन्होंने मैथ के ट्यूटर के तौर पर भी काम किया है, लिख लें, ही वर्कड एज अ मैथ ट्यूटर पहले तो। फिर इसने लिवलीहुड कमाने के लिए, चूंकि बहुत गरीब था, तो इसने फिर क्या किया, मैं आज आपको उसकी लाइफ पूरी बताऊंगा। तो इसने मैथ के ट्यूटर के तौर पर काम किया, और यहाँ पे एनानम एकेडमी है, स्कॉटलैंड का ये रहने वाला था, ये लिख लें जरा, ये रहने वाला कहाँ का था, स्कॉटलैंड में ये पैदा हुआ था। वहां पे एकेडमी थी, उसका नाम था एनानम एकेडमी। बाकी आपने डिटेल पढ़नी है तो मैंने उर्दू में लिख के आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एनानम एकेडमी में ये बतौर मैथ के ट्यूटर भी पढ़ाते रहे, और फिर इनको पता चला कि जब आप ट्यूटर बनते हैं तो आपको वही पीरियड मिलते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट होते हैं। तो इन्होंने फिर थोड़ा सा और अपने नॉलेज को बढ़ाया, इन्होंने हिस्ट्री का नॉलेज हासिल किया, ज्योमेट्री का हासिल किया, नेविगेशन का हासिल किया, और ज्योग्राफी का हासिल किया। और मैथ तो इनको पहले ही आती थी, लिख लें। यानी पहले ये मैथ के टीचर थे, उसके बाद इन्होंने ज्योग्राफी सीखी, और उसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स इनको पहले आती थी, और उसके बाद ज्योमेट्री सीखी, नेविगेशन सीखी। अब नेविगेशन क्या है, व्हाट इज नेविगेशन? नेविगेशन उस वक्त लोगों के पास इस तरह घड़ियां तो होती नहीं थी, आपको फिर वो सिखाते थे कैसे कि इस वक्त अगर पोजीशन जो है इस तरह की हो तो यहाँ पे ये टाइम होगा, यहाँ पे 10 बज जाते हैं, यहाँ पे 12 बज गए हैं, यहाँ पे 1 हो गया टाइम। तो इस तरह की नेविगेशन जो थी वो डिफरेंट डायरेक्शन से वो बताते थे कि अगर आप नॉर्थ में है तो ये टाइम है। तो इस तरह की डिफरेंट नेविगेशन से रिलेटेड जो टेक्निक्स थी ये सिखाते थे, तो ये उसकी बड़ी डिमांड थी उस वक्त। तो इसका मतलब ये नेविगेशन, ज्योमेट्री, और उसके अलावा मैथमेटिक्स और दीगर जो अलूम्स हैं ये पढ़ाते रहे ताकि ज्यादा पीरियड मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। और उसके बाद ग्रब स्ट्रीट के तौर पर भी काम किया, ग्रब स्ट्रीट राइटर के तौर पर। ग्रब, GRUB, ग्रब का मतलब लिख लें, जो स्ट्रीट में बैठ जाते हैं कि भाई जिसने मुझसे कुछ लिखवाना है वो लिखवा ले। ग्रब स्ट्रीट राइटर के तौर पर भी काम करते रहे हैं, और बहुत सारे वर्क जो है इन्होंने ट्रांसलेट किए हैं। मोस्टली ये जर्मन लैंग्वेज से काफी इंप्रेस थे, मतलब जर्मन फिलोसफर और जर्मन राइटर्स और क्रिटिक्स से बहुत ज्यादा फिलोसफर इंप्रेस थे। जर्मन के एक राइटर हैं गोथ, उनका नाम है, गोथे भी उनको कहते हैं, गोथ। इनके वर्क को भी इसने ट्रांसलेट किया है, लिख लें। ये गोथे जो है, या उसको गोथ कहते हैं, उसके वर्क को भी इसने ट्रांसलेट किया है। और उसके अलावा ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ राइटर एंड स्पेंट, ताकि अपनी पॉवर्टी की जो कंडीशन है उससे निकल सकें। पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ गुजारी है, डिप्रेस लाइफ गुजारी है। जब आपके पैसा नहीं होता आपके पास तो बहुत सारे मसले मसाइल आपको आ जाते हैं। तो जर्मन राइटर से जैसे मैंने बताया काफी मुतासर थे, गोथ के वर्क को इसने ट्रांसलेट किया है। और उसका नाम जरा लिख लें पूरा, अगर वो पूछ लें कि गोथ का पूरा नाम क्या है, उसका नाम है कंप्लीट जोहन्स, JOHAN जोहन वोलंगैंग। ये थोड़ा सा
मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, WOLGANG। जोहन वॉलंगैंग जो है उसका पूरा नाम था गोथ का, गोथे के वर्क को इसने, गोथ के वर्क को इसने ट्रांसलेट किया है। नाम है थॉमस कार्लाइल और जर्मन स्कॉलर से ज्यादा मुतासर था। इसके अलावा इसने मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप एक बुक उसको भी ट्रांसलेट किया, उसको भी इसने लिखा 1824 में, लिख लें। और उसके बाद लाइफ ऑफ द चिल्लर, लाइफ ऑफ द चिल्लर, आप देखें जितने भी जर्मन नाम आएंगे आप लोग तो उनको प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते, और बल्कि आपने सुने ही पहली दफा होंगे। लाइफ ऑफ द चिल्लर, कुछ इसे शिल्लर भी पढ़ेंगे लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, शिल्लर। एस लिख लें, SCHILLER। इसकी लाइफ के ऊपर भी इसने वर्क जो है 1823 में इसने इसके ऊपर भी लिखा। मतलब इसने कोई खुद से नहीं लिखा, जो चीजें थी उनको इकट्ठी करके बस लिखता रहा किसी की लाइफ में। और इसने कमेंट किया है, बहुत सारे राइटर्स के ऊपर कमेंट किया है, उनकी अलग-अलग उनके ऊपर लेक्चर दिए हैं, और वो लेक्चर भी कलेक्शन में इसके पब्लिश हुए थे। अब मिसाल के तौर पर इसने हीरोज के नाम पे, द हीरोज के, अगर आप द हीरोज इसका वर्क पढ़ें तो इसने आप सल्लम के ऊपर भी लेक्चर दिए हैं और बहुत एक बुक लिखी है, यानी एक कलेक्शन ऑफ इसका एक वर्क है। और वो हजरत मोहम्मद सल्लम के ऊपर भी लिखा है, द हीरोज। उसके अंदर ये डिस्कस करता है शेक्सपियर को, डांटे को, सुन ले नाम लिख ले उनके, यानी उसके ऊपर इसने डिस्कस किया है शेक्सपियर को, डांटे को इसने डिस्कस किया है कि ये ग्रेट पीपल थे, ये हीरोज थे, शेक्सपियर, डांटे। और उसके अलावा इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डिस्कस किया। ओलिवर क्रॉमवेल के ऊपर इसने लिखा है कि वो प्योरिटन बहुत बड़ा था, लीडर था। ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो प्योरिटन एज में मिल्टन की एज से ताल्लुक रखता है। ओलिवर क्रॉमवेल, जब इंग्लैंड में प्योरिटन्स की हुकूमत आती है तो प्योरिटन्स क्या करते हैं, वो पूरे इंग्लैंड पे कब्जा कर लेते हैं। और ये एज मिल्टन की एज से ताल्लुक रखती है, मिल्टन खुद भी एक प्योरिटन था। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के ऊपर ऐसे काबिज हो गए, और जितने भी वहां पे पोएट्री के वर्क, ड्रामा के वर्क, या वो आर्ट से रिलेटेड और लिटरेचर और ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे, उन्होंने सारे बंद कर दिए। ये सारे बादशाहों के फ्लैटरर्स होते हैं, इनको बंद कर दिया जाए। वो सारे वहां से दौड़ के उस वक्त फ्रांस चले जाते हैं। और जैसे ही चार्ल्स टू दोबारा वापस आता है, चार्ल्स टू फादर था चार्ल्स वन का। ये प्योरिटन जब यानी इंग्लैंड के ऊपर कब्जा करते हैं तो चार्ल्स वन का सर कलम कर देते हैं, और उसका बेटा उस वक्त दौड़कर कहां चला जाता है, इंग्लैंड में। तो ये उस वक्त तक यानी ये काबिज रहते हैं, जब चार्ल्स टू उसका बेटा वहां से फिर दोबारा हमला करके फिर वो इंग्लैंड के लोगों की जान छुड़वाता है। ये मजहबी लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से अपने आइडियाज में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो वो काफी एक्सट्रीमिस्ट थे प्योरिटन, और प्योरिटन्स ने अपने रूल्स उनके ऊपर इंपोज कर दिए। भाई आपने ड्रामा नहीं देखना, आपने थिएटर नहीं जाना, आपने लिटरेचर नहीं पढ़ना, आपने कल्चरल एक्टिविटीज नहीं करनी, वो सारी उनकी बैन कर दी। और इंग्लैंड के लोग तो बड़े मॉडर्न हैं, वो तो परेशान हो गए, ये कौन आ गए हमारे ऊपर। तो उन लोगों ने फिर चार्ल्स टू को वहां से बुलाया, और इस तरह ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है, और ओवरऑल फिर इंग्लैंड के ऊपर चार्ल्स टू का कब्जा हो जाता है दोबारा। फिर चार्ल्स टू से कहते हैं रिस्टोरेशन एज भी कहते हैं। वो हम इंशाल्लाह ताला जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को मैं डिस्कस करूंगा तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, ये आपने नोट कर लिए पॉइंट। लाइफ ऑफ द शिल्लर जो है ये इसने लिखी है 1823 और 24 में, और ये इसने सीरीज में लिखी है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, अगर आप चार्ल्स डिकन को पढ़ें तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जो नॉवेल्स आते थे वो सीरीज में आते थे। मिसाल के तौर पर हफ्तावार सीरीज होती है, आपने अक्सर देखा होगा, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, कुछ अखबारों के अंदर वो कुछ स्टोरीज आती हैं। एक स्टोरी आई तो दूसरी अगले हफ्ते आएगी, तीसरी किस्त फिर अगले हफ्ते आएगी, फिर चौथी आएगी, इस तरह जैसे ड्रामा सीरियल वाइज चलता है। तो इस तरह का बाज़ औक़ात उस वक्त मोस्टली जो वर्क थे वो इस तरह लिखे जाते थे सीरियल वाइज, कि एक सीरियल में आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और लोग वेट करते रहते थे कि नेक्स्ट जो है वो कैसे आएगा। तो ये भी इसने सीरियल वाइज इसको पब्लिश करवाया 1823 से 1824 तक। और कंप्लीट जो उसका वर्जन था, इसने लाइफ ऑफ द शिल्लर जो है वो इसने 1825 में उसको पब्लिश करवाया था। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी नोट कर लें। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 में, लिख लें। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था? 1789 में। अब ये चूंकि आया तो फ्रांस के अंदर था,
और उसकी कुछ वैल्यूज थी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी बेस के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। उसकी वैल्यूज लिख लें, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। कि सारे लोग जो हैं वो लिबर्टी में होंगे, सारों को इक्वल राइट मिलेंगे और सारे लोग जो हैं ब्रदरहुड में रहेंगे। ये उसकी कुछ वैल्यूज थी जो सारे फ्रांस में वो छा गया। मोस्टली उसके साथ कुछ फिलासफर भी वर्क कर रहे थे, और जो बड़े बड़े लेवल अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, लैंडलॉर्ड थे, वो लोगों को टूल यूज कर रहे थे। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड अ टेल ऑफ द टू सिटी पढ़ा है। और वो बच्चे, अगर बच्चे भी कुचले जाते उनके रिक्शा के नीचे या उनकी गाड़ियों के नीचे, तो वो कहते पता नहीं लोग अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं करते, ऐसे एक सिक्का फेंकते और कहते कि ये लोग तो भेड़ बकरियां हैं और इनका काम है कि हमें सर्व करना, और इनके बच्चे अगर कुचले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। और फिर उसी को बेस बना के वहां पे एक फ्रेंच ब्लड एक रेवोल्यूशन आता है। और वो क्या करते हैं, जितने भी अरिस्टोक्रेटिक होते हैं, जितने भी लैंडलॉर्ड होते हैं, जितने भी वजीर होते हैं, जितने भी किंग्स होते हैं, क्वींस होती हैं, शहजादे, प्रिंसेस, उन सबको पकड़ पकड़ के उनके 40,000 नवाबों के गले काट देते हैं। तकरीबन ये 1789 में आया था, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है पूरे यूरोप के ऊपर पड़े थे और स्पेशली इंग्लैंड के ऊपर पड़े थे, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रेंच पीपल जो आपस में रिलेटिव भी हैं। आपने नॉर्मन एज पढ़ा होगा। आपको मैंने बताया था कि नॉर्मन्स किस तरह से हमला करके अंदर जाते हैं और इंग्लैंड के ऊपर काबिज हो जाते हैं और अपना कल्चर और अपना लिटरेचर और अपनी टेल्स, रोमांसेस सब कुछ उनको देते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं। अगर रोमांस से रिलेटेड आप बहुत सारे वर्ड्स देखें तो आपको फ्रेंच के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जब ये लोग वहां पे गए थे तो इन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स बनाए थे और ये फीमेल के साथ अपने ताल्लुकात बनाते और इंग्लैंड की फीमेल के साथ उनके साथ रच बस गए और उनके साथ शादियां कर ली और नॉर्मन्स जो हैं वहां पे बड़े रिफाइंड पीपल बन गए। पहले ये वहां पे बैठे थे फ्रांस के अंदर और फ्रांस वालों के साथ उनके ऊपर हमले करते थे। ये बेसिकली स्लेव कीपर थे, फाइटर थे और जंगजू थे। तो फ्रांस वालों ने कहा यार हमसे लड़ो नहीं, तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा लैंड चाहते हो। लैंड ले लो। हाँ जी, और क्या चाहते हो? आपकी फीमेल से शादियां करने चाहते। चलें जी, जो भी उनके यंग थे उन्होंने फीमेल की शादियां भी करवा दी। उन्होंने कहा भाई हमें कुछ ना कहो, आप जो मर्जी करें, ये आपकी लैंड है, यहाँ पे आप नॉर्मैंडी एक प्लेस है, वहां पे बैठ गए। वहां पे बेस बना के, चूंकि ये फाइटर थे, इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर हमला कर दिया। इंग्लैंड पे जाते ही अपने इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, अपने नाम बना लिए, अपने वो कल्चर ले गए, लिटरेचर ले गए और लोगों को इन्फ्लुएंस करते गए। उनकी औरतों से भी शादी गई कर ली और उनके साथ भी रच बस गए। नॉर्मन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थी कि ये जहां जाते उनका हिस्सा बन जाते। तो इस तरह से ये नॉर्मन एज और एंग्लो नॉर्मन एज ये स्टार्ट हुई। मतलब उसमें एंग्लो नॉर्मल्स और उसमें अब मिली जुली इंग्लिश बोलते थे, मिक्सचर। तो यहाँ पे जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसने सारे इंग्लैंड के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला। वहां पे भी इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ के लोग वहां जाएं, वहां के इधर जाएं, वहां पे दहशतगर्दी हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में कोई मसला होता है तो वो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होता है तो वो इधर आ जाते हैं और फिर उसके बाद हमें प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह जब लोगों बॉर्डर शेयर्ड होते हैं, जब हमारे रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो रिलेशन एक बंदे को इम्पैक्ट नहीं करते। आप एक फैमिली के 2 मेंबर को मारते हो तो दूसरे जो हैं वो दूसरे इम्पैक्ट होंगे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह फिर इंग्लैंड का भी इसके ऊपर काफी इम्पैक्ट हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर ये फिर बुक लिखता है। इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से मुतासर होकर हमारा एक राइटर है चार्ल्स डिकन, जो कि विक्टोरियन राइटर है, जिसको हम पढ़ेंगे, नॉवेलिस्ट था। उस नॉवेलिस्ट, हिस्टोरियन नॉवेलिस्ट था, उसने इसके ऊपर अ टेल ऑफ द टू सिटी लिखा। वो थॉमस कार्लाइल की बुक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे मुतासर हुआ। इसने इसके बाद अगर थोड़ा सा रेनेसेंस एज को डिस्कस करें, रेनेसेंस एज आप देखिए, जब रेनेसेंस आया था तो वो बेसिकली फ्लोरेंस इटली में आया था। तो इटली में रेनेसेंस आता है और उसे वहां पे इंग्लैंड तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 200 साल लग गए थे। यानी वो तो 14th सेंचुरी का उधर स्टार्ट हुआ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ आस्ता आस्ता ये इंपैक्ट पड़ता है। तो जो रेवोल्यूशन की वैल्यू थी, रेवोल्यूशन की वैल्यू क्या थी? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी। ये सारी वैल्यूज जो हैं, अब इंग्लैंड वाले भी, इस तरह के हर कंट्री वाले तकरीबन ये चाह रहे थे कि ये सबको मिले। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर आप देखें, वर्ड्सवर्थ को, पीबी शैले को देखें, ये सारे रेवोल्यूशनरी पोएट थे। और अगर आप यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज को देखें, पीबी शैले को देखें और इसके अलावा विलियम ब्लेक को देखें, तो ये सारे लोग मुतासर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक अपनी फिलॉसफी रखती है,
कभी इसको मैं आपको बड़ा डिटेल लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। उसके बाद इसने एक बुक लिखी, लिख लें, पास्ट एंड प्रेजेंट। ये लिखी इसने 1843 में, लिख लें 1843 में इसने एक बुक लिखी, उसका नाम है पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट में क्या था, उसमें इसने पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो हिस्ट्री है उसमें उसने बताया कि पहले लोग कैसे थे और अब लोग कैसे हैं, थॉमस कार्लाइल ने। यानी पहले लोग किस तरह के थे और आज लोग किस तरह के हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। पास्ट एंड प्रेजेंट, ये 1843 में लिखी है इसने बुक, पास्ट एंड प्रेजेंट, 1843 में। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड को इसने डिस्कस किया। इसके अंदर हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से इंग्लैंड और सराउंडिंग कंट्रीज को बताया कि किस तरह के इम्पैक्ट यूरोप के ऊपर आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री से स्पेशली किससे मुतासर था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये खुद भी मुतासर था। इसने कुछ लेक्चर दिए थे कलेक्शन की शक्ल में, और वो लेक्चर 6 हीरोज के ऊपर, उनके नाम से वो आज जाने जाते हैं। अच्छा, इसने द हीरोज लिखा, और उन हीरोज के अंदर इसने सिलेक्ट किए बंदे, उनके नाम जरा लिख लें ताकि आपको पता चल जाए। एक तो इसने ओलिवर क्रॉमवेल के ऊपर इसने लिखा। ओलिवर क्रॉमवेल ने जो जो लेटर्स लिखे थे, ओलिवर क्रॉमवेल ने अपनी हुकूमत के अंदर किस तरह से मिल्टन के साथ उसके ताल्लुकात थे, और वो लेटर लिखता था या वो दूसरी गवर्नमेंट को लिखता था, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को लिखता था, किस तरह से इंग्लैंड को उसने कंट्रोल किया था अपने दौरे हुकूमत में। ओलिवर क्रॉमवेल से किस तरह से लोग मुतासर हुए थे और उसने हुकूमत कैसे चलाई थी। वो एक रिलीजियस और प्योरिटन बंदा था, नाम है ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में वो कहता है वो भी एक हीरो था। इसने तकरीबन राउंड अबाउट कोई 6 हीरो जो हैं वो डिस्कस किए हैं, उसमें सारे लोगों के नाम लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, पहला तो इसने लिखा है, ओलिवर क्रॉमवेल के बारे में लिखा है, और उसकी लेटर और स्पीचेस के बारे में बताता है कि वो कैसे जंग जीता था, कैसे वो लड़ता रहा है, चार्ल्स टू को उसने कैसे मारा था, वो सारी हिस्ट्री उसके अंदर डिस्कस करता है। ये 1845 में उसने लिखी है, और इसमें भी उसने खुद नहीं लिखा, जो उसकी स्पीचेस थी वो कलेक्ट करता रहा और उसके बाद उसको लिख दिया। मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि एक सर्च और रिसर्च में क्या फर्क होता है। बीइंग अ रिसर्चर, मैं खुद एक रिसर्चर हूं, तो मुझे पता है कि एक सर्च होता है कि किसी का दिया हुआ डाटा वैसे ही उठाऊं, उसे कंपाइल करके आपके सामने रख दूं। रिसर्च में यह फर्क होता है कि उसमें मैं अपने व्यू देता हूं, मैं अपनी कमेंट्री, और मेरी अपनी वहां पे एक लैंग्वेज होती है और मेरे अपने व्यू होते हैं, मेरी अपनी क्रिएटिविटी होती है। लेकिन ये तो एक है ना, किसी का वर्क उठा के तो उसको कंपाइल करके बुक बना दी। जैसे बहुत सारे लोगों ने नेट के ऊपर से, यानी वो स्टार नोट्स और उसके अलावा डिफरेंट नोट्स जो हैं, उन नोट्स को इकट्ठा करके किताबें बना दी। अब उसमें किसी कोई बंदा क्वेश्चन करे कि भाई इसमें आपकी क्या कमेंट है, आपकी क्रिएटिविटी का क्या है। तो इस तरह इसने भी लोगों की किताबें जो हैं, मतलब उनकी उसके लेटर और उसकी बातें और ये वो इकट्ठा करके एक किताब बना दी, एक उसने एक कलेक्शन बना दी। तो वो ओलिवर क्रॉमवेल, इसने 1845 में उसके ऊपर लिखा। उसके बाद ऑन हीरोज के अंदर इसने डिफरेंट हीरोज का जिक्र किया है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, इधर भी मैंने लिखे हुए हैं, वो इधर मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसकी कुछ बुक्स हैं, हिज बुक्स है द सार्टर एंड रीसार्टर, द टेलर्स एंड रिटेलर्स। ये 1836 में लिखी है। इट वाज पब्लिश इन द सीरियल्स इन द फ्रेजर मैगजीन। ये फ्रेजर मैगजीन जो है ये बड़ी मशहूर है, तो इस मैगजीन के अंदर ये पब्लिश हुई थी बुक। तो इसका इट्स प्रेफेस वाज रिटन बाय रैल्फ वाल्डो एमरसन। ये रैल्फ वाल्डो एमरसन एक पोएट था, एक फिलासफर था, और एक ट्रांसेंडेंटल पोएट था। ट्रांसेंडेंटल फिलासफर कौन होता है? ट्रांसेंडेंटल ऐसा फिलासफर है जो कहता है कि इंसान को अगर आप नेचर को समझना चाहते हो तो यहां से जो आपकी थॉट्स, फीलिंग और ये जो बॉडी है इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ट्रांसेंड का मतलब होता है यहां से दूर। तो ट्रांसेंड होके सोचना, एक आइडियलिज्म की दुनिया में जाके सोचना, उसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल अप्रोच। तो ये ट्रांसेंडेंटल फिलासफर था रल्फ वाल्डो एमरसन, अमेरिकन था। इसने उसका प्रेफेस लिखा था, ये जो बुक है। उसके बाद क्लोथ्स, इसकी एक क्लोथ्स बुक है, इन्फ्लुएंस बायोग्राफी है डॉजनीज जर्मन की, और थॉमस कार्लाइल इनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है।
शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 19th सेंचुरी, उसमें वो 19th सेंचुरी की डिस्क्रिप्शन देता है कि किस तरह से हम गॉड से दूर हो गए हैं और किस तरह मैकेनिकल चीजों में हम इन्वॉल्व हो गए हैं। इंग्लैंड में आपको पता है कि वो तकरीबन 16-17 सेंचुरी में टोटली छोड़ चुके थे मजहब को। मेरे ख्याल में अगर चौसर की एज से आप देख लें, उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था चर्च का। चर्च को जैसे क्रिटिसाइज किया तो 15 सेंचुरी में आते आते रेनेसेंस आया और ह्यूमनिज्म आई। ह्यूमनिज्म ने निकाल बाहर किया इनको, और ये चर्च बेचारे चर्च जो है एक साइड पे हो गए। भाई चर्च है ना, बस ठीक है, अपनी साइड पे रहो। यानी दीन का और दुनिया का आप में क्या राब्ता। वो कहते हैं भाई आप चर्च के लोग हैं, आपका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने चर्च को एक साइड पे कर दिया। पहले चर्च जो था बड़ा डोमिनेट करता था, इवन वो उनको फैसले नहीं करने देता था। तो इसलिए कहा कि मजहबी लोग, वो उन्होंने कहा कि मजहबी लोग लिमिटेड होते हैं, गॉड की दुनिया और है, ये वर्ल्डली दुनिया और है। हमारे कोई, मेरे ख्याल में एक नवाज शरीफ से किसी ने क्वेश्चन किया था कि, या परवेज मुशर्रफ से, मुझे याद नहीं है, मैंने किसी सुना था। तो उसने कहा कि यार हम तरक्की करना चाहते हैं। उसने कहा भाई आप तरक्की नहीं कर सकते। परवेज मुशर्रफ ने कहा हम क्यों नहीं तरक्की कर सकते। उसने कहा भाई तरक्की आप इसलिए नहीं कर सकते, आप तो किसी जन्नत की तलाश में हैं, बस उसे तलाश कीजिए, आपका क्या ताल्लुक प्रोग्रेस से। तो शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 19th सेंचुरी, वो लोग टोटली यानी मजहब को वो डिस्कार्ड कर चुके हैं। और आज भी यूरोप के अंदर चर्च बिक रहे हैं। आपके पास पैसा है, आप चर्च खरीद लें, उसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो प्राइवेट है, उनका एक अपना सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो जो मर्जी करें, चाहे वो बेच दें चर्च को, कोई पूछने वाला नहीं। शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 19th सेंचुरी वेयर ड्यू टू द मैकेनिकल थिंग वी हैव लॉस्ट फेथ इन गॉड। वो कहता है, उसमें डिस्क्रिप्शन देता है क्लोथ्स के अंदर कि किस तरह से हम मजहब से दूर हो गए हैं। यानी उस वक्त 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में वो बता रहा है कि किस तरह लोग मजहब से कितने दूर हो गए थे उस वक्त, और किस तरह हम, कहता है, भूल चुके हैं, और फेथ जो गॉड के ऊपर है हमारा खत्म हो चुका है। दिस वर्क कंसिस्ट ऑफ द 3 बुक्स, इसकी 3 बुक्स थी और उसको डिफरेंट सीरीज में उसने उसको पब्लिश किया। तो उसमें भी डॉजनीज और इसके बारे में वो डिस्कस करता है, जर्मन एक राइटर था। और इसमें इसने मजीद डिस्कस किया एवर लास्टिंग नो और एवर लास्टिंग यस। एवर लास्टिंग नो का मतलब होता है कि गॉड को, या तो गॉड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या गॉड को टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। दो